Hello students. So in the previous module, I explained you about the party system. I have a question. I could have asked that in that module itself, but then I think let's give them a time to understand which party system is better. Now you answer me. You have already seen or read about one party, bi-party and multi-party. Now tell me which party system is better. You know, half of you will jump up because you are in a democratic form of government and say multi-party system. Then some of you might be inclined towards America and Britain and you will say, oh, bi-party system. But let's be very honest. First time ever in my life, I have seen a good sense of humor in your textbook, NCERT textbook. If you come up to this last paragraph of the topic, you will see this question, that which party system is good or better. And then the very next line is an awesome reply. It's an awesome, amazing reply. They say, the answer to this question is that this question is not a good question. Because which party system is better, it does not depend on what you choose. It depends on your history. It depends on your relationship with the neighbors. It depends what kind of society you are and what's the nature of your society. And now, how much regional differences are there? All these things plays a major role, and then a political system is defined. So you cannot just say कि नहीं यार कल से one party system follow करेंगे. या फिर suddenly America will come up and say कि no, we will have a multi-party system. See, आपको एक practical example बता देता हूँ. You have seen the case of Afghanistan and Iraq. They were under dictatorial rule. Afghanistan, so it's like king, dictator, trying to be democratic, then under Taliban. So lots of complication. Iraq, they were under Saddam Hussein. What America did, they brought down this dictatorial regime to bring democracy. They literally forced democracy on the people. But then what happened? Look at that country. They are under civil war now. तो बॉस आप चुन नहीं सकते हो अपनी मर्जी से. जस्ट बिकॉज इंडिया में डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, कल इराक बोलता है हम भी डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे, या फिर चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, इंडिया में ये जोश आ जाता है नहीं यार डेमोक्रेसी तो खराब है, लेट्स गो विद चाइना एंड हैव एन कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नो बॉस. सो विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, यू डोंट चूज. एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन your social condition, economical condition, your history, your nature of society and lots many things. तो अब ये सवाल आ जाता है कि हमने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों चुना. प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए. वंस आई एक्सप्लेन यू दिस सेक्शन, आई विल कम बैक अगेन टू दैट पार्ट. सो अब एक छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में यू हैव 6 पॉलिटिकल पार्टीज, and then to be very honest, the new data says that there are 8 political party. So but you stick to your textbook and just learn about 6. तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं. तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. तो आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं, ये याद रखने का. इन्हें आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहोगे या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहोगे. नाउ क्वेश्चन इज हु रिकॉग्नाइजेस देम एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. आंसर इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ बीइंग recognized as a national political party or a state political party? Merits hai boss. You will get a symbol which can be carried by the party and the party member throughout. Now, access to the government machinery is very easy. अगर एक कंडीशन सोचिए कि आप अमित शाह हैं, ठीक है, अमित शाह जी हैं आप. Now you want to conduct a rally in a ground in Bombay Oval. You know, he will find it real easy to get an permission because he can actually visit to a commissioner office and get an permission. You try and go to Mumbai's commissioner's office and ask him whether you can organize a small rally there for your education purpose. I'm sure you won't get, because आप कमिश्नर तक ही नहीं पहुंच पाओगे, एक्सेस नहीं है. वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, दे कैरी एन सिंबल एंड दे आर वेरी रेप्यूटेड. दे विल गेट lots of funding from different sources. You go out and ask that you want to start a relief camp and you want to put some money and give it to the people who have been suffering from these cyclones. But then you won't be able to
collect that much of money because people are not going to pay you that big. But ये जब खड़े होंगे और जब ये फंड मांगेंगे पार्टी इलेक्शंस के लिए, then people will give them crores, hundreds of crore, thousands of crore. ये फायदा होता है being recognized political party का. बट अब recognition किस बेसिस पे होता है? तो बहुत ध्यान से the simplest thing you keep in your mind. Remember a number 446. but then ऐसे याद रखिए 446. तो है क्या ये 446? सिंपल सा नंबर है. If you want to be a national political party or if you are a national political party, you should be active in minimum 4 states. Then you should win minimum 4 seats or 6% of the total vote cast during लोकसभा इलेक्शन. तो अगर ये 446 का फंड आप क्लियर करते हो तब आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हो. वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है और वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है. बट देन आपको बता दूं 446 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए. स्टेट का बताता हूं नंबर क्या होगा. 126. मैंने ये सब यहां लिखा नहीं सो दैट आप थोड़ा सोचो, आप खुद लिखो और यूज टू हो जाओ. 126. 1 क्या है भाई? स्टेट पॉलिटिकल पार्टी. यू शुड बी एक्टिव एटलीस्ट इन 1 स्टेट. Then you should win at least 2 seats or 6% of the votes cast during the legislative assemblies election. समझे? तो ये नंबर याद रखिए, तब आप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे, नेशनल बन जाओगे या फिर स्टेट इलेक्शन के हिसाब से. तो हमारी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सब जानते हैं बहुत अच्छे से, सबसे पुराना नाम है. देन वी हैव भारतीय जनता पार्टी, सबसे पॉपुलर नाम है करेंटली. और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी. उसके बाद आता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ममता बनर्जी जो आजकल बहुत न्यूज में है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, मिस्टर शरद पवार. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, मार्क्सिस्ट. ये ज्योति बासु जी की पार्टी है, इनका एक रिकॉर्ड है इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे विद अलोंग विद द पॉलिटिकल पार्टी. तो चलिए फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. बट उससे पहले वो आंसर जो सवाल मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा. सवाल था कि व्हाई डिड वी चोज मल्टी पार्टी सिस्टम. The answer is very simple. You are a huge country, 7th largest in the world, 2nd largest populated, so diverse that it has been called as subcontinent, physically, geographically, socially, extremely diverse nation. Religiously भी, linguistically भी, हर तरीके से आप diverse हो. तो do you think one party system is enough to take up our issues or 2-party system? No, we have to go and find out a better solution, for which we chose multi-party system. So एक चीज याद रखिए, कोई भी पार्टी सिस्टम जो होता है ना वो आइडियल नहीं होता है. It's just the situation which gives you a party system. You know, there are certain countries wherein they have national political parties and all, and these parties have their units रूलिंग अक्रॉस द कंट्री. बेल्जियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. एक ही पॉलिटिकल पार्टी है बट उसी पॉलिटिकल पार्टी के यू विल हैव एन यूनिट्स डाउन एंड दे आर गोइंग टू रूल. सो ये कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डेफिनेशंस थे. अब हम लोग हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे. देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यू हैव दिस 2 पेजेस वेरिन आपको ये सारे पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बता दिए. काफी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है. मेरी खुद की स्लाइड में ये एक पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल से फिट हो रही है. कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नंबर होंगे, डिफिकल्ट है क्योंकि डेट्स है, और लेंदी है क्योंकि नाम है और आइडियोलॉजी है. तो हम इसको कुछ इजी वे सोचते हैं और इजी वे मैं आपको बताऊंगा बाद में. पहले मैं ये बता देता हूं कि ये कैसे है, फिर मेरा इजी वे क्या है. देखिए, सो द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, यू ऑलवेज राइट अबाउट द फुल फॉर्म की पहला पॉलिटिकल पार्टी क्या है. इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाउ पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी. Then this party was founded in 1885 by Alan Octavian Hume, 28 December. कितने अच्छे से हमने शुरुआत की थी, बस बिल्कुल यही थी वो. तो
अब सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के, कुछ के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, फिर उन्हीं के वंशज हैं आज राहुल गांधी जी, ये भी इसी पार्टी से रिलेटेड है। हम फोकस कर रहे हैं एक सेक्शन पे कि ये पॉलिटिकल पार्टी कितना रूल की है, कब थी रूल में, और इनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, देन हाउ मच दे हैव रूल्ड एंड हाउ लॉन्ग, दैट विल डिस्कस। फॉर द आइडियोलॉजी, अंडरस्टैंड this party espouses secularism. It's simple word. It means it actually promotes secularism. It supports secularism and welfare of weaker section of society and minority, which is like any weaker section, SC, ST, OBC, or the minority. It can be Hindus, the Jains, then Buddhist, and then Sikhs, and the Muslims. ये सब तो उनके welfare section के लिए बात कर रहे हैं. Also, it supports a new economic reform but within human face. अगर मैं सिर्फ यहीं पे कट कर दूं तो बड़ा इजी होता है समझना, but then when I add this thing but within human face, so ये क्या है? It's just an English statement which means I am going for a new economic reform but my priority will be people. I cannot take up any decision which is going against them. And mostly in India, if you come up with any economical plan where the weaker section of society's rights are hampered or they are suffering, then these plans are dropped. तो ये है इस पार्टी की आइडियोलॉजी। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पे आते हैं। Most of the time, this political party is been a centric political party, and then they say if you are a centric party, there is a left wing and there is a right wing. So ये left party क्या होता है, ये right party क्या होता है? This thing came from French Revolution. You remember Palace of Versailles, where the meeting was called for a state general. So 300 members from the first estate, 300 members from the second estates was sitting face to face and right and left, and the king was in the center. Ideally, this was like first estate, second estate, they were the right wing, they were the supporting king, and the third estate were the left wing, they were against the king. So king was in the center. Herein, because this was the major political party for the longest period of time, they were the centric party. Now the second part, which is utmost important after your ideology, आप एक चीज याद रखिए, जब भी इस पार्टी के बारे में लिखना है ये कब पावर में थे, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमेंबर बिकॉज सिंस देयर फॉर्मेशन they have been in power for the longest period of time. You just write this line, nobody is going to deduct your marks, because if you don't remember these years, they were in center in till 1977, then again they came back in 1980 and they will remain there in 1989. After 1989 support declined, then few other parties came, then again they came in picture in 2004 with 145 members in Lok Sabha. All these things, if you remember, it would be real difficult for you. You can simply say this political party was in center for the longest period of time, and recently they formed United Progressive Alliance and they formed a coalition government under the leadership of Sardar Manmohan Singh ji. So कुछ चीजें याद रखिए। अब before I take up other political party, let me tell you how to remember all the political party and what you are supposed to write instead of all these things. Simply write the full name of a political party, give a justification to a symbol if you can. This is palm, not hand. Most of you will jump up and say it's hand. So it's palm. Then you say when they were founded, by whom they are founded, and important leaders. आपके 3 important point हो गए। चौथा पॉइंट होगा आइडियोलॉजी का, जिसमें आपके हर पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम 2 या 3 आइडियोलॉजी हैं, इनके भी हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो इसमें एक मिसलेनियस पॉइंट जहां पे वो सेंट्रिक पार्टी रही है फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन यू से दैट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट दे फॉर्म्ड। ऐसे करके आप हर पॉलिटिकल पार्टी का लिखोगे और किन स्टेट्स में वो एक्टिव है। ओ, कांग्रेस किन स्टेट्स में एक्टिव है? पूरी इंडिया में। सिंपल आंसर है, इसलिए हमने इनमें स्टेट्स लिखे ही नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट और शार्प रहिए जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक मैंने बता दी है। सो बिफोर आई कम विद द नेक्स्ट मॉड्यूल, यू ट्राई दिस ऑन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सो बाय दैट टाइम यू ट्राई एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, welcome back to political party, and we are still in that arena and we are going to find out who our competitors are. So they are
the different political parties. And you remember in the last module I said that you have to try the method which I said about the other political parties. So let's see how much you have done. यहाँ पे हम बात करते हैं. तो अब की बार या इस बार और अगली बार मुझे नहीं पता, but it's मोदी सरकार. So you know the important leader of this political party, and everyone knows the name, Bharatiya Janata Party. What is the symbol? A lotus. A beautiful lotus founded in 1980. It's just an reviving of an Bharatiya Jana Sangha. मतलब पहले जो पार्टी बनी थी 1980 में वो भारतीय जन संघ थी. ये भारतीय जन संघा वो ज्यादा अंग्रेज बनने के चक्कर में आता है, वैसे पार्टी का नाम था भारतीय जन संघ. ओके, नाउ इस पार्टी का जो मोटिव है, जो आइडियोलॉजी है, I think most of us or maybe many of us in our country are not able to get it, or we are taken in a wrong way. At least a section. See, I'm not supporting them whether they are wrong and right, but yes, to an extent. They believe in cultural nationalism. English में बड़ा अच्छा word लगता है, पर हिंदी में जब मैं बोल दूं तो कुछ लोग मेरे against खड़े हो जाएंगे. The word is हिंदुत्व, which means they support and they feel that India should be one nation wherein they want integration of Jammu and Kashmir, which they have done with a new rule. Uniform civil code. They were fighting. They came up with this thing wherein they said that triple talaq will not be accepted anymore because moralless hai wo, or so many things. So I don't know about that, nor I want you to get into it, but they want uniform civil code. Rules सबके लिए एक जैसे होंगे, एक ही लॉ होगा. जैसे आपने देखा होगा ना, इंडिया में मैरिज लॉ अलग है, हिंदू मैरिज लॉ अलग, इस्लामिक मैरिज लॉ अलग, कैथलिक अलग, प्रोटेस्टेंट अलग, ये सब बहुत सारे हैं. सो दे वांट कि ऐसा कुछ ना हो, सारे लॉज जो हो ना वो सेम ही हो, और ये शारिया लॉ ना आए, आपके रिलीजियस लॉज बीच में ना आए, किसी के भी दूसरे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का. तो दे आर अगेंस्ट दैट. They are also against conversion of people. Now when they say na conversion, it's forceful or by some lucrative offers and all. So they are against that conversions. ये इनकी आइडियोलॉजी है. ये आपकी आइडियोलॉजी हो गई. पार्टी का फॉर्म हुई, गिवन मी द आंसर की 1980 में भारतीय जनसंघ से है. अब लीडर्स भी आपने 2-3 लिख दिए हैं. When were they in power? Currently they are in power. Also, when United Progressive Alliance were formed by Congress, they were part of National Democratic Alliance. Atal Bihari Vajpayee ji was one of the most important leader, and currently you have 2-3 bigger faces and bigger leaders: Amit Shah ji, Yogi Adityanath ji, and our Prime Minister Mr. Modi ji. Going ahead with the next political party is Bahujan Samaj Party, and the symbol is elephant. Started in 1984 under the leadership of कांशीराम. बहुत ध्यान से इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में देखना, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दोस 2 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस, हियर इन योर आइडियोलॉजी विल मैटर. और ये बहुत सिंपल सा है. तो इनका आइडियोलॉजी क्या है? लीडर आपको पता चल गया कांशीराम, फॉर्मेशन डेट पता चल गई, और अगर इंपॉर्टेंट लीडर की बात की जाए तो करेंटली जो है मायावती जी हैं. अब दे सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर power for the Bahujan Samaj. When I say word Bahujan means the weaker section of society, the Dalits, the Adivasis, the OBCs, also the religious minorities. Now, from where have they got this inspiration to support this section of society? It came from the teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Gandhi, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Naicker and Baba Sahib Ambedkar. ये सारे ही लोग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, एंड दे स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित सेक्शन एंड ऑप्रेस्ड पीपल. ये पार्टी बहुत ओपनली एक ही सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए फेमस है, एंड yes, to an extent they are successful. They have been supported by this weaker section, और currently they are very active in UP. और एक बहुत स्मार्ट चीज बताता हूं आपको, जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव स्टेट बोलोगे तो लॉजिक सी बात है, इफ दे आर एक्टिव इन यूपी तो चांसेस ऑफ देयर एक्टिवनेस इन केरला माइट बी वेरी लेस ना, बहुत दूर है, तो नजदीकी स्टेट्स में ज्यादा होगा. तो सिंपली राइट द नियरेस्ट क्लोज बाय स्टेट्स. सो दे आर वेरी एक्टिव इन यूपी, बिहार एंड एमपी. तो आपके स्टेट्स हो गए. और
ये पॉलिटिकल एरिना में कब आए थे? यूपी में इनकी गवर्नमेंट रही है, बट दे वर पार्ट ऑफ सेंटर ऑल्सो। लोकसभा इलेक्शंस जो 2004 के थे, अबाउट 5% वोट्स इन्हें मिले हैं और 19 सीट्स मिली हैं। तो एक नेशनल पार्टी है, 19 सीट जीत के और 5% वोट तो 6% का कंडीशन था ना, बट देन कंडीशन याद है दूसरी वाली और था, वो आपको सीट्स जीतना भी जरूरी था। इनके पास 19 है, ना कि 4। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है हमारे रूलिंग पार्टी के लिए। अब आते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जी आज के एक्टिव रूलर है, महाराष्ट्र के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। इंटरेस्टिंग सी बात है ना, इंडियन पॉलिटिकल फिगर है और आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। वैसे मैंने इन्हें कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा है, और ना ही आपने देखा होगा। 1999 में फॉर्म हुआ इन द सेंस स्प्लिट हुआ है कांग्रेस से। और देखिए आइडियोलॉजी क्या है, नाउ दे आर सपोर्टिंग कांग्रेस ओनली। एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, वैसे ये वर्ड यूज करते हैं ना, एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, इट लुक्स लाइक वेरी बिग एंड ऑल, सिंपली इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, ठीक है। बैक्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म। अगर मैं सेक्युलरिज्म बोलूं तो सेक्युलरिज्म होता है, उसमें गांधीयन सेक्युलरिज्म ऐड करने से मुझे नहीं लगता है कि केक के ऊपर चेरी आ गया। बट देन यस, गांधीयन सेक्युलरिज्म मतलब थोड़ी गांधी आइडियोलॉजी के बेसिस पे सेक्युलरिज्म। इक्विटी, देखिए इक्विटी एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। इक्वालिटी लाने के लिए आप रिजर्वेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स यू ब्रिंग, बट इक्विटी इज नॉट रिजर्वेशन, इसीलिए थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर इनका है। सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो आपका सेकंड टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ हद तक दे डिमांड इन चेंज इन दैट स्ट्रक्चर एंड दे हैव जस्ट डिमांडेड, दे आर नॉट बीन सक्सेसफुल, अदरवाइज चैप्टर में आ ही जाता। Major party in Maharashtra, as I said, is a prominent figure in Maharashtra and has a very significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. You know, this example proves me wrong. Initially मैंने पिछले पार्ट में आपसे कहा था ना कि अगर यूपी में बीएसपी फेमस है तो चांसेस है कि यार नजदीकी स्टेट्स में फेमस होंगे। अब इनको देखो, अब ये महाराष्ट्र में एक्टिव है और उसके पास इनके एक्टिव स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट, बहुत दूर, बट दैट इज व्हाट द आइडियोलॉजी इज। If you talk some sense, if it makes lot of sense to those people, they'll follow you. They were coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress. देखिए पॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कांग्रेस पार्टी से ही स्प्लिट होके बने थे, बट देन ये कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करके ही पावर में है। दैट्स हाउ द पॉलिटिक्स इज। इसीलिए आप लोग पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तौर पे लीजिए, डोंट मेक इट अ बैटल अमंग योर फ्रेंड्स or in family members. Since 2004, they are member of United Progressive Alliance. Moving ahead and coming to Communist Party of India, CPI. 1885 Congress was formed, but then after a very long gap in 1925 in Kanpur, you got this political party, CPI, Communist Party of India. बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। ये दो वर्ड बड़े इंटरेस्टिंग है। रशियन रेवोल्यूशन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, उनकी आइडियोलॉजी पे ये पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड है। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी चाहती है, अपोज द फोर्सेस ऑफ सक्सेशन एंड कम्युनलिज्म। देखिए सेक्शनिज्म जो होता है ना, वो एक सेक्शन डिवाइड करना होता है, दे आर अगेंस्ट इट, दे डोंट बिलीव इन सेग्रीगेशन पार्ट्स। तो it's a very good sign, and when you are a communist party you always support the weaker section openly, especially look at the symbol, they have a sickle and then you have this wheat, or simply it means crop, so they support farmers zyadatar, accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class farmers and the poor। एक आपको बहुत अच्छी फैक्ट बताता हूँ, 1925 में ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुई है, पर आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना में है, बहुत प्रोमिनेंट है। रशिया में ये आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा चली है, जर्मनी में चली है, वहाँ से उठी है, एंड देन अमेरिका में भी है और ब्रिटेन में भी है। पर पहली बार कोई भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर में आया था तो वो थी इंडिया, और यही पॉलिटिकल पार्टी थी केरला से जो कि पावर में आई थी। तो दैट्स एन बिग अचीवमेंट फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड द आइडियोलॉजी। दिस पार्टी unfortunately became quite weak when they got divided and they got split in 1964 when they had their another branch, CPIM, Marxist.
अब आपको एक बहुत स्मार्ट सिंपल सी चीज बताता हूं, जब भी आप इन दो पार्टीज के बारे में लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो अगली पॉलिटिकल पार्टी आप कौन सी पढ़ने वाले हो, CPIM पढ़ोगे, तो आपके पास ये पॉइंट जो है ना वो दोनों के लिए हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ CPI इज इन 1964, स्प्लिट ऑफ CPI इज इन 1964, 2 पॉइंट हो गए। और याद रखिए स्प्लिट क्यों होता है, इट्स एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ लीडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दे secured about 1.4% votes and 10 seats in 2004 लोकसभा इलेक्शन, an interesting very important political party। और कम्युनिस्ट पार्टी अगर 10 सीट जीत रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट शोज कि यस वी आर डेमोक्रेटिक। Also, they supports UPA government. What is UPA? United Progressive Alliance. In short, Congress is the major party and then the others are backing up. So, we come to Communist Party of India, Marxist. स्पेसिफिकली लेनिनिज्म को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ मार्क्सिस्ट को। CPIM, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है इनके, ज्योति बासु जी, ये मेल है ज्योति बासु जी। इनका रूल ये है, ये इसलिए फेमस है कि इन्होंने वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस आई थिंक CM रहे हैं, आई वोंट से रूल किया है बट CM रहे हैं। 1964 में फॉर्म हुए, बिलीव्स इन अगेन Marxism and Leninism, supports socialism, secularism, opposes imperialism and communalism। ये सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको दूसरे में एक अलग लाइन मिलेगी, ये दोनों पार्टी सेम ही लाइन की हैं, बस कुछ डिफरेंस आया और ब्रेक हो गए। तो एक्टिव भी उन्हीं एरिया में जहां पर CPI थी, तो वेस्ट बंगाल होगा, केरला है और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। Accepts democratic elections as a useful and helpful means of securing the objective of socio-economic justice in India। मतलब democratically they believe in everything। वैसे कम्युनिस्ट जो होते हैं काफी aggressive होते हैं to demand the things and they get it, but ये they believe कि democratically we can raise up the demands and we'll get the support। We'll get the things in our favor। Enjoy the strong support in these states, West Bengal, Kerala, Tripura, बहुत ज्यादा strong है। और किन में, स्पेशली फैक्ट्री वर्कर्स में, एग्रीकल्चर लेबर्स में, पुअरर सेक्शन में बहुत फेमस है। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 years। मिस्टर ज्योति बासु वो थे जब से ममता बनर्जी आई हैं, ममता बनर्जी ने उनको रिप्लेस किया, तो आप जान ही सकते हैं कि क्या आइडियोलॉजी और कितने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं वो। करेंटली सपोर्ट्स UPA मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और जब मैं ये करेंटली कह रहा हूं ना तो इट इज बिफोर 2014, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आएंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज पे। ओके, एक और चीज बता देता हूँ बिफोर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, दो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट देन आपकी टेक्स्ट बुक में वो नहीं है, तो प्लीज डू नॉट गो एंड रीड अबाउट देम। आपके लिए बस इतना जरूरी कि तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो नेशनल कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, और वो 7th नेशनल पार्टी, और 8th वाली है NPP। 2013 में ये बनी है पॉलिटिकल पार्टी। इतना काफी है। लेट्स मूव टू स्टेट पार्टीज। बस एक छोटी सी चीज याद रखिए, 126 शुड बी एक्टिव इन 1 स्टेट, शुड गेट 2 सीट्स और 6% ऑफ द वोट, टोटल वोट कास्ट व्हेन यू हैव द स्टेट इलेक्शंस। तो ये इनकी कंडीशन होती है, और इन्हें रीजनल पार्टी भी कहते हैं। बॉस टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, 52 स्टेट पार्टीज हैं, और मुझे 52 स्टेट पार्टीज के ना सिंबल पता है ना नाम, बट हाँ कुछ बहुत प्रीडोमिनेंट पार्टीज हैं जो हम सब जानते हैं, AIDMK, DMK है ना, और आप समाजवादी पार्टी को जानते हैं, वो भी बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है, बीजू दल, जनता दल, बजरंग दल, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो स्टेट पार्टीज हैं और बहुत फेमस है, अकाली दल। तो उन सब की बात वो नहीं करेंगे, बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, और हर एक चैलेंजेस को हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो, because you have to revise about all the political parties. When I come back in the next module, we'll discuss about the challenges to political parties. Thank you. Keep smiling.